I want our viewers to understand the significance of the Dharm Dhwaj that's been designed to go up at the Abhijit Muhurt, which is in about 3 hours plus from now, around 12. I want to cut across to Anjali, who explains the design and the aspects of the Dharm Dhwaj. Listen in. Absolutely, Gaurav. We'll now tell our viewers about the symbols that will be present on the Dharma Dhwaj that will rise over the Ram temple today, and what does each of the symbol on the flag signify. Now, the first and foremost is the Om symbol that will be on the Dharm Dhwaj. Now, remember, Om is a very significant symbol in Hinduism, and this will be present on the Dharm Dhwaj. It is an eternal sound, and it has been added to match the ancient scriptural design on the Dharm Dhwaj. Now, the second is the sun symbol on the Dharm Dhwaj. Now, remember, it signifies Lord Sri Ram's Suryavansh lineage, and it also represents the royal ancestry and radiance of Lord Sri Ram. Now, the third symbol that will be present on the Dharm Dhwaj is the Kovidar tree. It is a sacred tree described in the scriptures, and it is a hybrid of Mandar and Parijat, and it is also linked to early plant experimentation in ancient India. So these three symbols will be present on the Dharm Dhwaj, and in just a few hours from now, the Dharm Dhwaj will be rising over the historic Ram Mandir, marking the completion of the construction, and the three symbols, the Om, the Surya and the Kovidar tree, will be present on this Dharm Dhwaj. So this is the significance of all of these symbols that will be present on the Dharm Dhwaj. It is a historic day. All roads lead to Ayodhya today. All eyes are on this grand ceremony that will be held in the Ram Nagari. And we just now told you about the three symbols. What does each symbol on the Dharm Dhwaj signify? Each of the symbol has its own significance, be it Om, be it Surya, or be it the Kovidar tree. It indeed does, Anjali. Yes. Thank you very much, Anjali. Yatindra Mishra, who's one of the organizers, in a moment, I spoke to him. He'll explain the importance of this entire ceremony and what will transpire. But before that, अभिजीत नक्षत्र की जो बात हो रही है आचार्य जी, ये अभिजीत नक्षत्र में ध्वजारोहण होगा, इसका क्या मायने है? अभिजीत नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो हमारे ज्योतिष में, वैसे तो वो विराट जो पुरुष है, एक मंत्र है, वेद मंत्र जो बोला जाता है, आप मतलब अभी सुने होंगे उस मंत्र को, जो जिसको हम लोग पुरुषोक्त कहते हैं। उस पुरुषोक्त का पहला मंत्र है सहस्त्रशीरिखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पित्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्। वो जो विराट पुरुष है जिनकी हम पूजन करते हैं, श्री राम जी, जो विराट रूप में संपूर्ण मतलब विश्व में मतलब छाए हुए हैं, उनके हजारों नेत्र हैं, और उन्हीं के नेत्र की ज्योति से ज्योतिष का जो है उत्पादन हुआ है, निष्पादन हुआ है, जो उत्पत्ति हुई ज्योतिष शास्त्र की। भगवान विराट पुरुष के जो मतलब नेत्र से वो ज्योतिष शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है, जिसमें 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, उसी नक्षत्र में एक नक्षत्र 28वां जो अभिजीत नक्षत्र होता है, जो समस्त नक्षत्रों का राजा है, मुख्य नक्षत्र सबसे शुभ माना जाता है। वो जो है प्रतिदिन मध्याह्न काल में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच जो भगवान की जन्म नक्षत्र है, अभिजीत नक्षत्र, सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र वो माना जाता है। उस समय जो भी कार्य किया जाए, चाहे शुभ किया चाहे अशुभ किया जाए, निश्चित रूप से वो पूर्ण रूपेण 100% वो सफल होता है। अच्छा, ये बताइए, ये ध्वजारोहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इससे क्या असर पड़ जाएगा? ध्वजा का मतलब होता है कीर्ति। जिसकी कीर्ति मर जाती है वो व्यक्ति मर जाता है, चाहे वो कोई भी हो। कीर्ति यश सा जीवती, व्यक्ति नहीं जीता है, उसकी कीर्ति जीती है, उसका मतलब यश जीता है, उसका नाम लोग इसी लेते फला व्यक्ति था कि बहुत मतलब जो है कीर्तिवान था, बहुत यश किया था, बहुत मदद उन्होंने उपकार किया था लोगों के पास। तो इसी तरीके से कीर्ति रूपी ये जो पताका है, जब तक रहता है उसकी कीर्ति रहती है, उसका यश इस संसार में गूंजता है, उसके नाम को लोग लेते रहते हैं।
इसलिए कीर्ति को जीवित करने के लिए, यश को जीवित करने के लिए आज त्रेता के राम जो है आज कलयुग में भी जो है बहुत प्रसिद्ध है और सबके मन में बसे हुए हैं। तो ये उनकी कीर्ति है। राम जी तो हमारे मन में है, तन में है, सब कुछ में है, लेकिन उनकी कीर्ति के रूप में स्मरण किया जाए, इसलिए धर्म ध्वज परम आवश्यक है। धर्म ध्वज परम आवश्यक है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। आप ये सोचिए, when you talk about Lord Ram, it's the bhajans that you will hear, the swasti vachan that you will hear, Gayatri and Ranjini, they are classical music singers from Tamil Nadu. They will be singing Ram Stuti in Tamil, in Kannada, in Malayali, and in so many, and in Sanskrit, and in so many different languages, because Lord Ram unites our entire country, north to south, east to west. That will reflect. So I caught up with Yatindra Mishra, who's an author, he's a poet, he's the son of the royal family here. He's linked to this function today. I caught up with him to understand this significance, not just of the Dharm Dhwaj, but of the ceremony. Listen in. Tell me the significance of this beautiful ceremony of the Dhwajarohan at the Divya Bhavya Ram Temple. मुझे लगता है कि दिव्य मंदिर जो है, ध्वज जो है, वो प्रतीक है आपकी सनातनता का, आपकी आस्था का, और आपका जो सिविलाइजेशन है, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं। श्री राम वैष्णवता के प्रतीक हैं। श्री राम हमारे सनातन धर्म के एक प्रतीक पुरुष हैं। श्री राम के नाम पर एक पूरी संस्कृति चली है, क्योंकि हमारा देश दो बड़े धर्म ग्रंथों पर आधारित है, रामचरितमानस या रामायण और महाभारत। तो राम और कृष्ण की अवधारणा, वैष्णव होने की परंपरा, और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ सेक्रीफाइस की फीलिंग। राम ने हमेशा सेल्फ सेक्रीफाइस किया, और एक तरीके से जिसे कहते हैं कि आत्मोत्सर्ग की भावना, बलिदान की भावना, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कॉलोनीज नहीं बनाते, वो उपनिवेश नहीं बनाते, जहाँ जहाँ कॉन्कर करते चलते हैं, सबके राज्य छोड़ते चलते हैं। किष्किंधा सुग्रीव को सौंपते हैं, लंका विभीषण को सौंपते हैं। वहाँ अपना ध्वज नहीं आरोपित करते कि अब ये अयोध्या का विस्तार है। उस रूप में राम बहुत वरेण्य हैं। और जब सनातन धर्म की बात आती है, जब उनके जन्मस्थली की बात आती है, केसरिया रंग का ध्वज है। केसरिया शौर्य और पराक्रम और त्याग का प्रतीक है। और उसके बाद उसमें इक्ष्वाकु वंश के सूर्य देव स्थापित हैं, और उसमें से ओम प्रणव ओंकार ध्वनि है, और साथ में कोविदार वृक्ष जो राजकीय प्रतीक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब मिल करके एक उस परंपरा का आह्वान है कि जहाँ वीर होना है, जहाँ त्याग होना है, और जहाँ अपने धरा के साथ, अपने पेड़ पौधों वनस्पति के साथ जुड़ने की बात है। एक वृक्ष किसी मंदिर या किसी राज्य के प्रतीक चिन्ह के रूप में ऊपर रखा जाए तो कहीं ना कहीं से सेव द अर्थ और सेव द एनवायरनमेंट की बात करता है।